Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. In this video, let's try to understand how to use needn't, don't have to, and mustn't. So let's start our today's topic. Must is a modal verb and we use must to talk about necessity and obligation. जब भी हम बात करते हैं necessity और obligation की तो हम क्या यूज करते हैं must and its negative form is must not जिसको ब्रिटिश इंग्लिश में प्रोनाउंस किया जाता है as mustn't. ओके सो लेट्स सी कि हम must कैसे यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, don't tell anybody what I said. Don't tell anybody what I said. You must keep it a secret. You must keep it a secret का मतलब क्या है कि it's necessary for you to keep it a secret. ये आपके लिए जरूरी है कि आप इसको एज अ सीक्रेट रखें. फॉर एग्जाम्पल, इसका उर्दू में मतलब क्या होगा कि डोंट टेल एनीबॉडी व्हाट आई सेड. जो मैंने कहा वो किसी को मत बताना. यू मस्ट कीप इट अ सीक्रेट. इसको एज अ सीक्रेट रखें. एंड मस्ट का जो नेगेटिव फॉर्म है दैट इज मस्ट नॉट एंड यू कैन प्रोनाउंस इट एज mustn't. Okay, so mustn't, we use mustn't when we say कि some things are not allowed या things are not allowed to be done. Okay, तो उस context में हम क्या यूज करते हैं mustn't. या simply you can say कि don't do it. Don't do it. आप किसी को strictly prohibit करते हैं कोई काम करने से तो आप क्या यूज करते हो? You use must not or mustn't. For example, you mustn't smoke here. You mustn't smoke here का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए. इट मीन्स कि यू आर नॉट अलाउड टू स्मोक हियर. मीन्स फॉरबिडन. यू आर फॉरबिडन टू स्मोक हियर. आपको यहाँ पे स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए. लाइकवाइज वी हैव अनदर सेंटेंस कि यू मस्टंट लीव द गेट ओपन. आपको दरवाजा खुला हुआ नहीं छोड़ना चाहिए. मीन्स डोंट डू इट. यू आर नॉट allowed to leave the gate open. उसको आप दरवाजे को हमेशा बंद रखें, उसको खुला हुआ ना छोड़ें. Likewise, we have another sentence. Passengers must not undo their seat belts. जो मुसाफिर हैं उनको अपनी सीट बेल्ट नहीं उतारनी चाहिए. It means कि they are not allowed to undo their seat belts. Now, let me repeat कि हम यूज करते हैं must not means not allowed when you are not allowed to do something. या आप किसी को मना करते हो और simply you say कि don't do it, but you strictly आप उसको कहते हैं कि आप उन्होंने ये काम नहीं करना. then you will be using mustn't या must not. needn't like mustn't is a modal verb as well. जब आप need not यूज करते हैं needn't तो आप needn't की जगह पे don't need to भी यूज कर सकते हैं and you can also use don't have to. And we use needn't when we talk about something that is not necessary to be done. ऐसी चीज जिसको करने की जरूरत नहीं है. But if you do it, it's okay. अगर आप करते भी हैं तो भी क्या है? Okay है. But इसका ये मतलब नहीं है कि you are not allowed to do it. When you talk about something that is not allowed to be done, then आप क्या यूज करोगे? mustn't. But जब कोई काम करने की जरूरत ना हो लेकिन फिर भी बंदा करता है तो आप क्या यूज करोगे? needn't, don't have to or don't need to. Now need can either be a modal verb or it can be an ordinary verb. अब ordinary verb का मतलब कि main verb. main verb होगा तो उसके साथ कुछ कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा. whereas जो modal verbs होते हैं उनकी एक ही फॉर्म होती है. with every noun and with every pronoun उनकी फॉर्म जो है वो सेम रहती है and they do not require any other helping verb. Now, for example, you needn't speak so loudly. आपको तेजी से बात करने की जरूरत नहीं. Now it means if you speak loudly, it's okay, but it is not necessary for you to speak so loudly. जरूरत नहीं है. अगर आप तेजी से बात करते हैं तो भी क्या है? Okay. Likewise, you can replace needn't with don't need to and don't have to. So you can say you don't need to speak so loudly and you don't have to speak so loudly, but you have to bear the difference in your mind. जब आप needn't यूज करते हैं तो आप needn't के बाद bear infinitive यूज करोगे.
बेयर इन्फिनेटिव का मतलब है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट टू। जब आप डोंट नीड यूज करते हैं तो डोंट नीड के साथ जो है वो इन्फिनेटिव भी यूज होता है। लाइकवाइज डोंट हैव के साथ भी आप क्या यूज करोगे, टू यूज करोगे। सो वी हैव अनदर सेंटेंस, शी नीडंट कम विद अस। नाउ यू सी नीड्स नॉट नहीं होगा क्योंकि विद एवरी नाउन एंड विद एवरी प्रोनाउन जो मॉडल वर्ब्स होते हैं उनकी क्या होती है, सेम फॉर्म, उनकी सेम फॉर्म यूज होती है इन एवरी सिचुएशन। ओके, सो शी नीड नॉट कम विद अस, उसको हमारे साथ चलने की या आने की जरूरत नहीं, अगर वो आती भी है तो इट्स ओके। Likewise, when you say कि she is thirsty, she needs a drink. Now you see, I have used as with need क्योंकि हम थर्ड पर्सनल जो सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं या जो नाउन्स होते हैं उनके वर्ब के साथ इन द प्रेजेंट टेंस हम क्या ऐड करते हैं, एस और es। So she needs a drink, it means in this sentence जो need यूज हुआ है वो एज एन ऑर्डिनरी वर्ब यूज हुआ है। need is not a modal verb in this sentence. Likewise, we have another sentence कि they need to see you, उनको आपसे मिलने की जरूरत है, उनको आपसे मिलने की जरूरत है। अगेन नीड जो है दैट हैज बीन यूज्ड एज एन ऑर्डिनरी वर्ब। नीड को जब हम एज अ मॉडल वर्ब यूज करते हैं तो इट इज कॉमनली यूज्ड इन नेगेटिव फॉर्म, मींस इन नेगेटिव सेंटेंसेस। ये जो पॉजिटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चंस में ये हार्डली यूज होता है एंड ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, फिर फॉर्मल हो जाता है। बट कभी कभी इट इज यूज्ड इन क्वेश्चंस एज वेल। फॉर एग्जांपल, नीड यू गो होम सो सून, नीड यू गो होम सो सून। अब इसका मतलब क्या है कि डू यू हैव टू गो होम सो सून, क्या आपको इतनी जल्दी घर जाने की जरूरत है या आपको इतनी जल्दी घर जाना है। So you will be using need, yeah, don't do you have to, okay? Likewise, you have another sentence, need I say more, need I say more means क्या अभी भी मुझे मजीद कुछ कहने की जरूरत है। So I can say कि do I have to say more, do I have to say more। Now ये जो use है that is more formal, ये formal है। अब natural क्या होगा, natural way जो होगा that is to use need to फिर आप एज अ क्या यूज करते हैं, नीड को एज एन ऑर्डिनरी वर्ब यूज करते हैं इन क्वेश्चंस एंड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। बट व्हेन योर सेंटेंस इज नेगेटिव देन यू प्रेफर नीडंट, फिर क्या यूज होता है, नीडंट या डोंट हैव टू आप डोंट नीड टू। सो इन द पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चंस जो नेचुरल वे है तो आप क्या यूज करोगे, नीड टू यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट एनीथिंग यू ओनली नीड टू आस्क, अगर आपको कुछ चाहिए आपने जस्ट हमसे कहना है, ठीक है, आपको हमें कहने की जरूरत है। लाइकवाइज वी हैव अनदर सेंटेंस, डिड यू नीड टू पे सो मच इन द पास्ट, ओके, डिड यू नीड टू पे सो मच, क्या आपको जो है ज्यादा पे करने की जरूरत थी। सो जो नीड होगा, अगर नीड को आप एज अ मॉडल वर्ब यूज करते हैं इन क्वेश्चंस एंड पॉजिटिव सेंटेंसेस तो ये क्या होगा, मोर फॉर्मल, ओके। अगर आप नेचुरल वे में यूज करना चाहते हैं देन यू हैव टू यूज नीड टू बोथ इन पॉजिटिव एंड क्वेश्चंस, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। क्विक रिव्यू करते हैं, वी यूज मस्टंट टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज नॉट अलाउड टू बी डन, ओके, मतलब किसी चीज को करने की जब जरूरत नहीं होती या इजाजत नहीं होती तो हम क्या यूज करते हैं, वी यूज मस्टंट। जरूरत न होने के साथ साथ इजाजत भी नहीं होती, वी आर फॉरबिडन, वी आर नॉट अलाउड टू डू दैट थिंग, देन आप क्या यूज करोगे, मस्टंट यूज करोगे। फॉर एग्जांपल, यू मस्टंट स्मोक हियर, इट मींस कि स्मोकिंग इज फॉरबिडन हियर, यहाँ पे स्मोकिंग करना मना है। लाइकवाइज जो है आप कह सकते हैं कि यू आर नॉट अलाउड टू स्मोक हियर, ओके। एंड वी यूज नीडंट व्हेन it is not necessary to do something, when we talk about something that is not necessary, मतलब करने की जरूरत नहीं, but if you do it that is okay, you can do it if you want। for example, you needn't smoke here, you needn't smoke here, इसका मतलब क्या है कि it is not necessary for you to smoke here but you can if you want, आप कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। and needn't की जगह पे you can also use don't have to and don't need to,
So I hope कि आपको समझ आ गया होगा. If you have any question or confusion, you may ask me in the comment box. Like and share the video and kindly subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.